एक बार मुझे देखना पड़ेगा, इतनी कुछ परसेंटेज उसमें से रिएक्ट हो गया, बाकी कितना रह गए। उसी के रिलेटेड अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर करना है तो हमें सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला। बट टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू गैसेस. You know that there are some reactions where reactants and products are in the gaseous phase. Okay, so we are talking of first order reaction where the reaction takes place in gaseous phase. Gaseous phase means all the reactants and products are in the gaseous state. So let us think about that. So it is a very important topic. Competitive exam purpose के लिए भी ये important है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा. I will give the derivation, how the equation has come. So we will discuss now. Okay. So let us consider a first order reaction. And for example, first I will give one example. Decomposition of ammonia. Ammonia on decomposition. NH3 on decomposition we get into and when we balance the equation we get 2 NH3 we get 3H2 and all are in the gaseous phase. This is a first order reaction. Moreover, in this case we can see that it is a gaseous phase reaction. Okay, so this is one example. For the derivation we need a general equation. So the general equation I will write down. First you will note down this one. This is one example where first order reaction at the same time it is a gaseous phase reaction. Now let us think about a general expression where A reacts or A on decomposition we get B and C. And we can mention A is in the gaseous phase, B also and C. B and C are the products. Okay, B and C are the product. Now in the case of gas, instead of concentration, we have to take partial pressures. So when we are discussing of partial pressures, we have to remember one law, Dalton's law of partial pressures. There we have learned that total pressure is equal to sum of partial pressure. That means total pressure of the gaseous mixture is the sum of partial pressures of component gas. So we can apply this in this case also. So what is that principle? P total is equal to PA plus PB plus PC. Where PA, PB and PC are partial pressures of reactants and products. So why we have to take all these three? Because they are in the gaseous phase. So we can't recognize or differentiate it as ये अगर reactant है वो अलग रख लो, B, C product है उसको भी अलग रख लो, वैसे नहीं जाएगा क्योंकि ये गैस है. You know that gases, the molecules are loosely packed, intermolecular forces are very big. So जब भी हम reaction लेते हैं उसमें reactant products सब gaseous phase में है, में total pressure के लिए तीनों लेना पड़ेगा. तीनों मतलब अभी इसी में एक reactant है, दो product है, तो हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए, बी एंड सी लेना ही पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एक थ्योरी. नाउ इनिशियल स्टेट, व्हाट विल हैपन एट इनिशियल स्टेट? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. दिस आई विल रब PAB plus B plus this one I will rub it now. Now initially what will happen? Initial state tan equal to 0. मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ और रिएक्शन मीडियम में सिर्फ A है और पार्शियल प्रेशर एट इनिशियल स्टेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ A is PI. I stands for initial. PI means the partial pressure of first, only one reactor is there, so partial pressure of A at the initial stage is denoted as PI. So what is the unit of pressure? Atmosphere. PI atmosphere. So initially B and C are not exist in the reaction medium. So partial pressure of B is 0 atmosphere. Partial pressure of C is also 0 atmosphere. Got it?
Initially, B and C are not there in the medium, so their partial pressures we can consider as 0 atmosphere. Got it? Now, at a time t second, at a time t seconds, means t after a period of time t time में partial pressure कैसे है? तो PI इनिशियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर स्टार प्रेशर, रिएक्टेंट दी, उसमें से X एटमॉस्फेयर ए रिएक्शन हो गया, मतलब एट ए टाइम t सेकेंड पार्शियल प्रेशर ए कितना है, PI इनिशियल था, उसमें से X रिएक्शन हो गया, X, तो उसकी कंसंट्रेशन या उसकी पार्शियल प्रेशर करने के कैलकुलेट करने के लिए जो X रिएक्ट हो गया वो अपन इनिशियल प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो PI हियर आउट ऑफ PI X अंडरगो रिएक्शन, जितनी बाकी है कितना बाकी है, PI माइनस X. तो इसमें X कैलकुलेट हो गया, तो इधर देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने बराबर है, तो इधर X अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितनी यहाँ से चले जाते हैं उतनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. सो इधर एट ए टाइम t सेकंड्स इधर बन गया X एटमॉस्फेयर B और X एटमॉस्फेयर C. ये लिखना है, पहले ये लिख लो, एट ए टाइम t सेकंड में क्या पार्शियल प्रेशर है, रिएक्टेंट में PI माइनस X, मतलब X रिएक्शन हो चुका है, तो बाकी कितना रहेगा, PI माइनस X. तो ये जितनी हो चुका है वो प्रोडक्ट में अपीयर होगा, इसीलिए इधर X एटमॉस्फेयर होगा, इधर X एटमॉस्फेयर, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल दोनों ही बराबर है, इक्वल होगा. कुछ लोगों को याद होगा लास्ट ईयर की जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, इसमें सिमिलर इक्वेशन हमने पढ़ा था, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं. अभी इसी सिचुएशन में टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर मेरे साथ साथ तुम लोग लिख लेना, टोटल प्रेशर PT, PT stands for total, T stands for total, P means the partial pressure. ये रिएक्शन मिक्सचर में टोटल कितनी प्रेशर है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, जोड़ दे इसको, कैसे जोड़ देंगे, देखो PI माइनस X, इसको जोड़ना है प्लस X और इसको भी जोड़ना है X. दिस इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्टस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो आपको बात पता है, ये माइनस X और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो PP क्या रहेगा, PT इज इक्वल टू PI प्लस X. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो. टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू PI प्लस X. इसमें से हमें क्या नहीं पता, कितनी पार्शियल प्रेशर यूज हो गया वो हमें नहीं पता, तो वो एक वैल्यू है वेरिएबल X. तो इसी इक्वेशन से X कैसे कैलकुलेट करेगा, देयरफॉर X इज इक्वल टू PT माइनस PI. इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट करो, डिटेल में समझ के लिख लो, और उसके बाद मुझे बता दो चैट बॉक्स में तुमने कंप्लीट किया है लिखना, और उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पूरी बोर्ड चाहिए, ठीक है. कंप्लीट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड. 3 बच्चों ने कंप्लीट किया है, और मैम हाँ मैम x इक्वल टू मैम वो लास्ट वाली इक्वेशन में देख नहीं रही, x इज इक्वल टू pt माइनस, इसी इक्वेशन से x कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो pt माइनस pi, ठीक है, गॉट इट आयुष. हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया. अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, शुरुआत ये वाला मिटा दूंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी तो ये चाहिए हमें. अभी हमें ये x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा कहीं एक जगह में, कहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A PA is equal to what, PA
एट ए टाइम टी सेकंड में पी ए कितना है, बताओ पी ए कितना है, कितना है, ये इसके बेसिस पे हमने लिखा था, याद है देखिएगा, पी ए मींस पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें सिर्फ देखना है रिएक्टेंट को। सो पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स। तो आपको लिखना है at a time t seconds partial pressure of A is equal to Pi minus x. Substitute value of x from equation number 2. Substitute करो, substitute equation number 2. We get Pa equal to Pi minus x का वैल्यू पुट करो Pp minus Pi, सही है, इक्वल टू Pi माइनस Pp प्लस Pi इक्वल टू, अब मैं मिटा रही हूँ, सो Pa इक्वल टू P2Pa, देखो ये 1Pa इधर है और ये Pa इधर, तो उसमें लिखना पड़ेगा 2Pi माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हमें जो अपन कंसंट्रेशन की जो इक्वेशन डिराइव किया है ना फर्स्ट ऑर्डर का, वही इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट इक्वेशन? K is equal to 2.303 divided by T log A naught upon A. और since this reaction is related to gas, instead of concentration we have to use pressure. So instead of A naught we can put initial pressure Pi initial. At a time T, what is the pressure? Pa. Pi by Pa. Partial pressure of A, correct? So then we substitute the value of A, Pa from this, what we get? K equal to 2.303 divided by T log Pi divided by 2Pi minus T. ये इक्वेशन तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखना है। So in the case of gaseous reaction, the formula used to calculate value of K or value of T, it is A equal to 2.303 by T log Pi divided by 2Pi minus Pt. इसमें तुम्हारी ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई मत करना, इसको कोई पोस्टमार्टम नहीं करेगा, keep it as such because this is the derived equation. We have to keep it like this and we have to apply this equation when the question is related to gaseous reactants and products. So this is all about the derivation. ये आपको पढ़ना है, ठीक है? Got it? समझ में आया नहीं? ये बताओ, चैट बॉक्स में लिख लो, if you got it लिख लेना why. हाँ करेक्ट, गुड, वेरी गुड। हाँ, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी लिख लो, ठीक है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तुम लोग जो रेस्पॉन्स करते हो ना, सो आई फील हैप्पी, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे रेस्पॉन्स इसी के थ्रू ही मिल रहे हैं ना। गुड, वेरी गुड बच्चे। और कुछ बच्चे बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, प्लीज रेस्पॉन्ड किया करो बीच बीच में, ठीक है? ओके, अब मैं इसको मिटा दूं, सबका कंप्लीट हो गया होपफुली, मिटाओ हम। अभी मैं लॉगरिथम भी बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? वो बस ट्रायल करवा रही हूँ कैसे तुम्हें कैलकुलेशन करना है, इसकी सिर्फ लॉगरिथम कैसे लेना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही बता दूंगी हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, मिटा रहे हैं भी। अभी होपफुली सभी के पास होगा, अपनी फर्स्ट वॉल्यूम होगा सबके पास, ठीक है? एनसीईआरटी का, उसके पीछे क्वेश्चन ले लेना। लॉगरिथम पेज नंबर 270 मेरी बुक में है, तुम्हारे बुक में कौन सी पेज है मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन ये वाला पेज ले लो, ठीक है?
So suppose we have taken, I will give one example. Log 100 upon 70. Board is visible. Unmute करके बताओ board visible है? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. अभी ये लिख लो, सिर्फ यही लिख लेना, ठीक है? Log 100 upon 70 में आपके लिए भी सिर्फ आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढना है उतना मैं बता देती हूँ, ठीक है? 100/70 ऐसे क्वेश्चन आ गए. सबसे पहले इसको बिल्कुल मैन्युअली डिवाइड करो. मैन्युअली डिवाइड करने का मतलब क्या है? 10/7 कैलकुलेट करो मैन्युअली. 10/7 1 7 3 7 4 0.28 2 7 2 are 14 6 3 डिजिट तक आ जाएगा, ठीक है? 8 8 7 are 56 4 0 इसके आगे नहीं गया. सो हमें कौन सी वैल्यू मिला है? 1.428 1.428 मिल गया हमें, ठीक है? 1.428 मिल गया. इसी की लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट करना है? लॉग 1.428 ये कैसे लेना है लॉगरिथम से वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सबसे पहले ये जो नंबर है उसमें दो पार्ट है. एक डेसिमल प्लेस है, एक होल नंबर प्लेस है. ये आपको पता है. दिस इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट 1. पॉइंट आपको भी ये भी पता है 0.428 मींस ए डेसिमल प्लेस है. लॉगरिथम की दो पार्ट्स होती है. एक है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, एक है मैंडी सम पार्ट. कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड मैंडी सम. ये दोनों पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और लॉगरिथम से कोई लेना देना नहीं. लॉगरिथम टेबल से हमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं कैलकुलेट करना. कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करेगा? होल नंबर पार्ट में कितनी डिजिट्स है वो आपको समझना. कितनी डिजिट्स, उसकी वैल्यू नहीं है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. जैसे कि इधर 1.428 होल नंबर पार्ट में कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है. जितनी भी डिजिट्स है उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक. सो 1 - 1 कितना है? 0. सो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0. फिर उसके बाद एक डॉट लगाना. डॉट का मतलब है डेसिमल पार्ट की हमें लॉगरिथम लेना है. तो डेसिमल पार्ट में कौन सी नंबर है? 428. अभी लॉगरिथम खोलो. लॉगरिथम पेज में सबसे पहले 2 डिजिट ले लो. कौन सी नंबर है? 42. 42 सबने ले लिया. 42 देखो 42 कहाँ पे है? 42 लेने के बाद थर्ड नंबर कौन सा है? 8. 42 में देख लो हॉरिजॉन्टल आ जाओ और उसमें ऊपर तुम्हें पता है 0 से लेके 9 नंबर तक ऊपर लिखा है और नेक्स्ट भी लिखा है, कुछ 1 to 9 लिखा है. इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स है, इसलिए हमें मीन डिफरेंस में नहीं जाना. मीन डिफरेंस मतलब उसके बाद जो कॉलम में 1 to 9 लिखा है उसी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर पे. सो 42 हमने ले लिया है तो हॉरिजॉन्टल 42 में चलो और उसमें 8 का वैल्यू ऊपर देखो. 8 की जो नीचे देखो कौन सी नंबर 42 की पैरेलल लिखा है वो तुम्हें से कोई एक बच्चों. आमिर तुम बता दो कौन सी नंबर है? हाँ ईशा वेरी गुड. 6314 है इसमें. वेरी गुड, ठीक है. सबको मिल गया. आमिर तुम बताओ तुमको मिल गया वैल्यू? आमिर, पूनम, ओके पूनम को मिला है. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. वो वैल्यू हमें लिखना है. कौन सी वैल्यू है? 6314. वेरी गुड. तो इसका वैल्यू कितनी है? 6314. सो लॉगरिथम, इसी की लॉगरिथम कौन सी नंबर है?
तो कैलकुलेशन में इसी को नंबर मान के हमें आगे कैलकुलेशन करना है। मतलब क्या है 2.303 ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इसमें a भी दिया होगा या t दिया होगा और इसी वैल्यू को हमें ऐसे डेसिमल नंबर मान के हमें आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। बस अभी तुम लोग लॉगरिथम का इतना ही सीखो, ठीक है। और जब भी टाइम मिलते तो हम आगे आगे हम बता देंगे, 2-3 और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और उसमें एक मैम हाँ आयुष, मैम मैम अगर लॉग मैम बड़ी वैल्यू हो जैसे 32 और 42 समथिंग से, हाँ ठीक है, उसका भी मैं एक और बात प्रैक्टिस करूंगा। और अभी मान लीजिए हमें 100/7 आया, 100/7 लेना है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे 100/7, तो log 100/7, तो इसमें हमें मैनुअल डिवाइड करना है, 7 1 3 7 हो गया 3 4 28, इंडेक्सली में वही वैल्यू फिट करना है, ठीक है। 20 और इधर आ जाएगा 2 40 6 0 56 78, सो 40.2, सो हमें कैलकुलेट करना है 40.2। सबसे पहले हमें लेना है, कौन सी वैल्यू लेना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में कितनी होल नंबर डिजिट है, ठीक है। कितनी होल नंबर डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए। अभी एक लड़की हो गया था मुझसे, उनसे गलती है, पहले वाला ले लेना, अभी मुझसे लोग क्या लिखा था 1.428, इसमें मैंने मिस्टेक किया है, कैसे मिस्टेक किया है बता दो, अभी कुछ किया, अभी कैरेक्टरिस्टिक तो इसका करेक्ट है 0 है पॉइंट, और उसमें 90 से कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पूरा लेना है, ये मैंने बताया। सी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसमें हमें लेना है, ये पॉइंट को हमें मानना नहीं, हमें लेना है 14 का 2 ले लो और उसमें 8 की डिफरेंस ऐड करना है, तो ये हम वापस ये कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाले में जो भी किया है उसको स्ट्राइक आउट करो, 14 का ले लो 14, 14 तुम्हें समझ में आया 14 कहाँ पे है, 14 ले लो, और 14 की जो 2 वैल्यू है 2, देखो 14 की जो 2 वैल्यू है कितनी है, यही वैल्यू आ रही है क्या, 14 की 2, 14 की 2 आ रहे 1523, ये ना, हाँ वेरी गुड 1523, देखो उसकी ऊपर जो वैल्यू है वो ही लेना है क्योंकि इसमें 2 है, और उसमें और पैरेलल जाओ, मीन डिफरेंस में जो फोर्थ डिजिट है 8, उसकी वैल्यू देखो, कौन सी वैल्यू, उसी लाइन में हॉरिजॉन्टल नेटवर्क इशू, 25 25 हाँ कोई बात नहीं, आई मेरी आई रिपीट, इसमें आएगी कौन सा वैल्यू आएगी, देखो बेटा 25, इसके साथ ये 25 आएगा, 8415, सो इसकी लॉगरिथम आ रही है 0.1548, ठीक है। इसी के थ्रू हम इसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ पे डिफरेंस होगा, सिर्फ ये होल नंबर पार्ट के कारण कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होगा। अब आप में से कोई भी बता दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितना है, जैसे 14 आ गया, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी गुड शशांक, कितनी होल नंबर डिजिट से, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितनी डिजिट से, 2 डिजिट्स, 14 2 डिजिट्स नंबर है, 2 -1 कितना हो गया, 2 - 1 1, तो इसमें आएगा 1 पॉइंट, फिर इसकी लॉगरिथम में कोई चेंज नहीं है, देखो हमें लेना है 14 का 2 लेना है और 8 ऐड करना है, तो वैल्यू आ जाएगा 1.15, ठीक है। इसी की थ्रू इस तरह से तुम्हारी अभी की जो अपनी न्यूमेरिकल है उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, बस इतना ही तक आएगा, ठीक है। और एक और मैं बता दूं अलग वैल्यू, ठीक है। आई होप ये समझ में आया, अच्छा होगी, दोबारा पूछा है मैम ये 1 क्यों आया, मैंने समझ में नहीं आया, हाँ मैम ये 1 क्यों आया, 1 क्योंकि ये होल नंबर डिजिट में 2 डिजिट्स है,
2 डिजिट मतलब 2 माइनस 1। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करने का यही रूल है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट से उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 14 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट से 2, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो हमें मिला 2 माइनस 1 1। गॉट इट? यस मैम। और एक अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग अपने अपने तरीके से उसको खुद कैलकुलेट कर लेना, सिंपल देती हूँ, ठीक है? क्योंकि एक प्रैक्टिस करने के बाद मैं भी निश्चित हो जाऊँ। लोग सिर्फ मुझे वो लॉगरिथम की वैल्यू चाहिए, लोग 100 अपॉन 60, ठीक है? ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है लोग 100 अपॉन 8 और 3 लोग 100 अपॉन 9। इसी के तीनों की ट्राई करके मुझे बता दो अभी, सिर्फ लॉगरिथम की कितनी वैल्यू है वो बता दो। लिख लिया 100 अपॉन 60, 100 अपॉन 8, और ये तीनों मिलने के बाद चैट बॉक्स में लिख लो, ठीक है? तीनों, हर्षित तीनों हो गया तुम्हारा? नो मैम। हाँ कोई बात नहीं, करो। हो गया कंप्लीट किसी का? कोई एक कंप्लीट करो तो फिर मैं वर्कआउट कर दूंगी बोर्ड पे, ठीक है? Completed. Okay. Suraj 0.227, 1.0969. Okay. Completed. हाँ। ये समीर, ये तीनों डिजिट कैसे आया? 4 डेसिमल प्लेस होना चाहिए क्योंकि लॉगरिथम में 4 डेसिमल प्लेस होता है ना। वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चों ने किया है उनके लिए क्लैपिंग कर देती है, ठीक है? ओके। हाँ, तो हम अभी मैं कर लूँ, मैं करके बता दूँ ये कैसे आया। सबसे पहले मैं मैनुअल डिविजन कर देती हूँ सबको। ये है 5, ये है 3, 5 upon 3, 1, 3, 2, 20, 6 3s are 18, 20, so 1.667. So log 1.667 4 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक तुम्हें वैल्यू करना है। 100 अपॉन 8 कितना आया? 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8 मतलब 50.4 and 27.2, कितना आएगा? 1 2 5 2
तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है, log 12.5 इधर आएगा log 10 का होगा, तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। यहाँ तक सही होगा सबका। 16 की 6 7, 16 की पहले 6 ले लो, 6 कितना है 220, और 7 मीन डिफरेंस उसके आगे जाओ, 7 मीन डिफरेंस कितना आया 90, और अलग है मेरा अलग है 16 6, वापस मैं चेक करती हूँ 16 की 6 2201 सही है, और उसके पैरेलल जाना है मुझे 7 में जाना है, तो 7 की वैल्यू 80 है, वैल्यू आ जाएगा 2.67 की, ये 180 डिजिट है, सो आ जाएगा 0.2229, तो लॉगरिथम पीरियड में 0.2219 आएगा मैम। हाँ, और दूसरी लॉगरिथम टेबल का भी फर्क होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी 12.5 कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 2 डिजिट से, 2 डिजिट मतलब 2 - 1 1 आएगा, 1.12 का 5 लेना है, 12 की 5 कितनी है 0969, 0969, और ये 11 अगेन ये एक ही डिजिट है, सो 1 - 1 0 आएगा, 0.11 की 1, 11 की 1 आएगा 0453, और मीन डिफरेंस 1 कितना आएगा 1 आएगा 4, वैल्यू आएगा 0.04, ये तीनों सही किसी का है, ओके वेरी गुड, हाँ ओके, कम से कम थोड़ा बहुत आया, और जिनका मिस्टेक हो गया वापस एक बार देख लेना, और हम न्यूमेरिकल कर देते हैं ना, कर दे अभी करेंगे उसी के रिलेटेड, तो अपन रेक्टिफाई करेंगे जितने भी डाउट हैं, ठीक है। मैम वो 1.666 नहीं ले सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि वो 1.66 आगे जाएगा ना, तो 5 के ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए हमें, एक ऐड करना है ना, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, हाँ इसीलिए। मैम अगर 666 लिया तो मैम आंसर गलत नहीं है कि थर्ड फोर्थ डेसिमल में कर डिफरेंस है ना, वो गलत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, ठीक है। अभी ये यहाँ तक हो गया हमारी डिटेल में पढ़ाई, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी तुम्हारा बीच में कभी टाइम मिले अभी नेक्स्ट पीरियड के पहले कर लेना, ठीक है, कोशिश करो, ये सिंपल वाला देती हूँ, ठीक है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, लिख लो क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete, 20% complete in 10 minutes. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time taken. Calculate the time taken for the reaction. For the reaction to go to 80% completion. 80% completion. क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई कन्वर्शन नहीं करना, कीप टाइम एज 10 मिनट्स, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, अब अपना कोशिश करो ये कंप्लीट करने के लिए। एक मैं आपको कैसे